فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قومی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل کا دہشت گردی کی لعنت جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ دہشت گرد پراکسیز کی بھارت کی سرپرستی کی شدید مذمت۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے پراکسی جنگ کا سہارا لے رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان پراکسیوں کا مارکہ حق کی طرز کا ذلت آمیز انجام ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی توانائی کا اجلاس۔ کئی دہائیوں بعد بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے خسارے میں کمی آنا انتہائی خوشائن۔ خسارے میں کمی سے کمپنیوں کی نجکاری کا عمل آسان ہوگا۔ وزیراعظم کی وفاقی وزیر سردار اویس احمد لغاری، سیکرٹری پار ڈویژن اور ٹیم کی تعریف۔ بہترین کارکردگی دکھانے والی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز کو 27 خطوط بھیجنے کی ہدایت۔ ریلوے کا جو فریٹ کا جو سیکشن ہے، جو آپ کی بہت بڑی کمائی کا ایک ذریعہ ہے، ان کو آپ ٹھیک کریں۔ ریلائبل آپ ان کو سواری دیں گے جس میں تاخیر نہیں ہوگی، وقت پر وہ پہنچے گے۔ پنکچویلٹی ول بی دی ہال مارک، تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن، ریلوے میں مثبت تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اشرافیہ نہیں، عام آدمی کے لیے شاندار سفری سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ٹکٹ کا پرانا نظام ختم کر کے جدید ڈیجیٹائز سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ یورپی ریلوے کی طرز پر پاکستان بزنس ایکسپریس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ پاکستان نے جنگ میں بھارت کو تاریخی شکست دی۔ عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ مختصر وقت میں پاک فوج نے دشمن کی غلط فہمی دور کر دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بزنس ایکسپریس ٹرین اور لاہور ریلوے اسٹیشن کی تزئین و آرائش۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹرین کا افتتاح کر دیا، کوچز کا بھی معائنہ۔ حکومت کی کاوشوں سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہوا۔ ریلوے کا ادارہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ترقی کر رہا ہے۔ بزنس ایکسپریس ٹرین لاہور سے کراچی 18.5 گھنٹے میں پہنچے گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی۔ دنیا کئی مشترکہ بحرانوں کا شکار ہے جو امن، معیشت اور ترقی کے لیے خطرہ ہیں۔ تنازعات انسانیت کے لیے تباہ کن نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ امن، انصاف اور خوشحالی کے لیے پارلیمانی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امن طاقت سے نہیں بلکہ مذاکرات، احترام اور اقوام متحدہ کے چارٹر سے ممکن ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا عالمی اسپیکرز کانفرنس کے مرکزی سیشن سے خطاب۔ انسانی اسمگلنگ دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج، لاکھوں افراد کو متاثر کرتی ہے۔ غربت، تنازعات، لا علمی اور غیر محفوظ ہجرت بنیادی اسباب۔ خواتین، بچے اور پسماندہ طبقات سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون، عوامی آگاہی اور مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر پیغام۔ انسانی اسمگلنگ عالمی سطح پر ایک منظم جرم کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جرائم پیشہ افراد دنیا بھر میں روزگار کے متلاشی افراد کو انسانی اسمگلنگ کے ذریعے استحصال کا نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کی اور کئی خطرناک اور مکروہ چہروں کو بے نقاب کیا۔ حکومت اندرون اور بیرون ملک بہترین معاشی مواقع پیدا کرنے کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر پیغام۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اور ٹیلی کام کی چین کے گوانگڈونگ گروپ کے وفد سے شنگھائی میں ملاقات۔ گوانگڈونگ گروپ کا شمار چین کے مواصلاتی شعبے کی صف اول کی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ گوانگڈونگ گروپ کا پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کی شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ گوانگڈونگ گروپ کا ای وی چارجنگ اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں بھی اظہار دلچسپی۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے مثبت اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,39,000 کی حد عبور کر گیا۔
मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर लीं। उम्मीदवार पार्टी टिकट के हुसूल के लिए दरखास्तें मरकजी सेक्रेटेरिएट में जमा करवा सकते हैं। मोदी सरकार का नाम नेहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव बुरी तरह बेनकाब। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया। मोदी की लोकसभा में तकरीर से एक दिन कबल फेक इनकाउंटर, सियासी स्टेज तैयार करने की कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तफाक नहीं है। गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दे दिया। मोदी सरकार को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शिकस्त के बाद सिफारती सतह पर भी मुंह की खाना पड़ी। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिला तमीज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। अगर दम है तो वजीर आजम मोदी कहीं कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसानात पर पर्दापोशी ने नाअहल मोदी सरकार को कहीं का ना छोड़ा। मोदी सरकार के अस्करी गरूर की शिकस्त पर लोकसभा में सवालात। जिनकी पूजा लीमू और मिर्च लगाकर की गई थी, उनमें से कितने तैयारे उड़े? एमपी अखिलेश यादव का तंजिया सवाल। गोदी मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का शोर मचाने वाली मोदी सरकार लोकसभा में मुकम्मल खामोश। भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर सवालात। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ है। ऑपरेशन सिंदूर हो या महादेव, हर महाज पर मोदी सरकार की नाकामी बेनकाब। हलाक होने वालों को फरामोश करके मोदी सरकार ने नाम नेहाद देशभक्ति की हकीकत बेनकाब कर दी। हलाक शुदगान के वरसा ने मोदी सरकार की खामोशी पर कई सवालात उठा दिए। मोदी ने पार्लियामेंट में तवील तकरीर की, हलाक अफराद का जिक्र तक नहीं किया। शुभम द्विवेदी की अहलिया अशानिया द्विवेदी। हलाक शुदगान के वरसा ने मोदी सरकार की खामोशी पर सवाल उठाकर झूठे जंगी बयान की असलियत खोल दी। गजा में इस्राएली बर्बरियत जारी, 83 फलस्तीनी शहीद, 33 इमदादी कारकुन भी शहादा में शामिल। फ्रांस के बाद बरतानिया का भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां ना रुकी तो सितंबर में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर नीदरलैंड का सख्त रद्दअमल। 2 इंतहा पसंद इस्राएली वजीरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने का तस्करा। भारत पर 25% टैरिफ आयद करने की धमकी। तिजारती मुआहदा तय ना पाया तो 20 से 25% टैरिफ आयद कर सकते हैं। भारत अमरीकी मसनूआत पर भारी टैक्सेस वसूल कर रहा है। बरतानवी वजीर आजम से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुतालिक बात नहीं हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की स्कॉटलैंड से वाशिंगटन जाते हुए तैयारे में मीडिया से बातचीत। रूस के मशरक़ी बई जजीरे के करीब 8.8 का शदीद जलजला, सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। जलजले का मरकज कामचटका ज़रीरा नुमा में था, जबकि 19 किलोमीटर गहराई रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे। जलजले के बाद कामचटका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गईं। जलजले के बायस चंद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। रूसी हुक्काम। बीजिंग में शदीद बारिशें और सैलाब, 30 अफराद जान की बाजी हार गए। ज़खायर में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का सैलाब से हलाकतों और नुकसान पर हुकूमत और आवाम की जानिब से मुतासरा खानदानों से सारी यकजहती। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन के आवाम मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पा लेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटे में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में बारिश मुतवक्के। मानसून का हालिया सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। दरिया और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर की इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान क्रिकेट सीरीज आगाज कल पहले T20 मैच से होगा। कौमी स्क्वाड का दूसरे रोज लॉर्ड हिल के ब्राउडर काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस ने कंडीशन के हिसाब से नेट प्रैक्टिस में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। बैटर्स ने पावर हिटिंग पर फोकस किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन 3 T20 और 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज शेड्यूल। पाकिस्तान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने पोलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। अब्दुल्ला नवाज ने पोलैंड के यानसन बोरुस्की को शिकस्त दी। अंसली शाह ने पोलिश शरीफ फ्रांसिस्क मैक्यूंच से हराया। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से है। टोरंटो में मास्टर्स थाउजेंड्स कैनेडियन टूर्नामेंट इटली के लोरेंजो मेस्सीटी डेनमार्क के हॉलगरियोन तीसरे मरहले में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपरिन और रूस के कैरन खैचनोव भी अपने मैचेस में फाते रहे। फ्रांस के आर्थर का सफर भी तमाम हो गया। मॉन्ट्रियल में मास्टर्स 1000 कैनेडियन ओपन खवातीन सिंगल्स इटली की जैस्मिन पाओलिनी को अपसेट शिकस्त। जापान की ओई एतोइने ने 3 सेट्स में शिकस्त दी। नौ मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस खवातीन साइकिल रेस नीदरलैंड्स की लॉरेना वाइब्स की लगातार दूसरी फतह। चौथा मरहला भी अपने नाम कर लिया। वाइब्स ने 130.7 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 54 मिनट और 11 सेकंड्स में तय किया। डच साइक्लिस्ट मारियाने नेवोस ने मजमूई बरतरी बरकरार रखने में कामयाब रहीं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अब फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म है, ताहम हर किस्म के अंदरूनी या बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और कौमी यकजहती की ज़रूरत पर जोर देते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत मार्के हक में शिकस्त के बाद अब फितनतुल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। इन तंजीमों का अंजाम भी वही होगा जो भारत ने पहले भुगता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्द ना तो किसी मजहब के नुमाइंदे हैं, ना किसी फिरके या कौम के, और इनके खिलाफ एक मुत्तहिद कौमी मौक़िफ़ और इज्तिमाई अज़्म नागुज़ीर है। उन्होंने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि दाराजाती हम आहंगी और मरबूत कौमी हिकमत अमली के जरिए ही सूबे को तरक्की के सफ़र पर गामजन किया जा सकता है। नशिस्त के इख्तिताम पर एक जामे मुकालमा भी हुआ, जिसमें वर्कशॉप के शुरका ने आर्मी चीफ से मुख्तलिफ उमूर पर सवालात किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी प्राय तवानाई का अजलास इस्लामाबाद में मुनाकिद हुआ। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कई दहाइयों में पहली बार बिजली तकसीमकार कंपनियों के खसारे में कमी आना इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली तकसीमकार कंपनियों के खसारे में कमी से इन कंपनियों की निजकारी का अमल आसान हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर बराए पार डिवीज़न सरदार अवैस अहमद लकारी, वफाकी सेक्रेटरी पार डिवीज़न डॉक्टर मोहम्मद फ़ख्र आलम और उनकी टीम की सताइश करते हुए पार सेक्टर इस्लाहात के हवाले से उनकी शानदार कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली और खसारे में कमी लाने वाली बिजली तकसीमकार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को सताइशी खतूत भेजने की हिदायत की। इजलास को पार डिवीजन की जानिब से बिजली तकसीमकार कंपनियों और गर्दिशी कर्जों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि बिजली तकसीमकार कंपनियों का खसारा 193 अरब रुपए कम हुआ है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने खसारे में कमी के हवाले से सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई।
नाज़रीन, बिजली तकसीमकार कंपनियों के खसारे में 242 अरब रुपए की बेहतरी आई है। इजलास को मजीद बताया गया कि गर्दिशी कर्जों का फ्लो 780 अरब रुपए रहा है। इजलास को बताया गया कि इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की ऑपरेशनलाइजेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को दिफाई मैदान की तरह मौशी शोबे में भी ताकतवर बनाना है। उन्होंने कहा कि वतन अजीज को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के लिए मिलकर काम करना है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत और कारकर्दगी की पॉलिसी पर अमल करते हुए सिफारती महाज समेत मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियां मिली हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद इकराम चौधरी अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि इत्तेहाद, मेहनत और जज्बे से अनथक काविशें रंग ला रही हैं, मुआशी, सफारती और दिफाई महाज पर सुरखरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीयत नेक हो और अज़्म जवां तो हर चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान भारत जंग का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक फौज ने अपनी पेशावराना महारत और टेक्नोलॉजी से दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। दुनिया भी हमारी कामयाबी और सलाहियतों की मोतरफ हुई। ये जो जंग हुई 4 दिन की, पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल सुप्रीमेसी थी, उसको इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। माशी मैदान में ये जर्नी बहुत लंबी है। हमने अभी मैक्रो लेवल के जो इशारे हैं उसमें हमें कामयाबी मिली है, वो भी टीम वर्क के नतीजे में। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम शोबों में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अवाम को बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए रेलवे में डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। आउटसोर्सिंग करते हुए वसाइल को इदारे की तरक्की के लिए बरूए कार लाया जाए। रेलवे का ये काम नहीं कि ज़मीनें वो संभाले और उनको देखे। आप ज़मीनें आपकी हैं, उनको आउटसोर्स करें शफाफ तरीके से। उसकी आमदन से आप मुसाफिरों की जो बोगियां हैं, इंजन्स हैं और रेलवे का जो फ्रेट का जो सेक्शन है, जो आपकी बहुत बड़ी कमाई का एक ज़रिया है, उनको आप ठीक करें। रिलायबल आप उनको सवारी देंगे जिसमें ताख़ीर नहीं होगी, वक्त पर वो पहुँचेंगे। पंक्चुअलिटी विल बी दी हॉल मार्क, तो लोग आपको याद रखेंगे। आज मेरा वो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम को इदारे की बेहतरी और मुहासिल में इजाफे के लिए इक़दामात पर मुबारकबाद दी। उन्होंने साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की काविशों को भी सराहा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने अपने खिताब में बताया कि 1 साल में इदारे ने मुहासिल की मद में रिकॉर्ड 93 अरब रुपए हासिल किए। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद को तरजीह देते हुए पाकिस्तान रेलवे की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। निज़ाम की अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी को आवाम की सहूलत के लिए इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लाहौर रेलवे स्टेशन को जदीद दौर की बेहतरीन सफरी सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात और पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे ताहिर जाफरी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया और ट्रेन में मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौका पर खुदकार टिकटिंग सिस्टम, फैमिली इंतजार का और CIP लाउंज का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मॉडल टक शॉप और मुसाफिरों की सहूलत के लिए नस्ब किए गए बरकी जीनों का भी मुआयना किया। उन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलतों पर इजहार इत्मीनान करते हुए रेलवे हुकाम की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान रेलवे को डिजिटाइज करने और जदीद सफरी सहूलतों से आरास्ता करने के साथ साथ मुल्क भर के रेलवे स्टेशन की असर नौ तज़ीनो आराइश की जा रही है। रेलवे तकरीबन डिजिटाइज हो गया है। इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट से लेके, इसकी अटेंडेंस से लेके, इसका 117, इसका टिकटिंग हासिल करने का तरीका कार, पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर हमारा जोर है। हम चीज़ों को आउटसोर्स कर रहे हैं। 348 स्टेशन के ऊपर पॉज मशीनें लगने जा रही हैं। ATM कार्ड्स मशीन किसी जगह नहीं थी, अब 3-4 बड़े स्टेशन पे लगी है, बाकियों पे भी लगने जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए कराची रोडी बनाने जा रहे हैं। रेलवे मुसाफिरों ने लाहौर रेलवे स्टेशन की तज़ीनो आराइश और ट्रेन में मेयारी सहूलतें फराहम करने पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी मुआशी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, रेल के अंदर बेहतरी गाहे गाहे आ रही है। लाहौर का रेलवे स्टेशन अब एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनने की तरफ जा रहा है। बुजुर्गों के लिए एस्केलेटर्स लग गए हैं, आपका जो एग्जेक्टिव लाउंज है वो खोल दिया गया है। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा मंजर नज़र आ रहा है। यहाँ
اب جو پالیسیز چل رہی ہیں گورنمنٹ کی ریلوے اسٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے، ہم پسند کرتے ہیں اس کو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے بعد اگلے مرحلے میں ملک بھر کے تمام ریلوے اسٹیشنز پر ٹکٹ وینڈنگ اور POS مشینیں نصب کی جا رہی ہیں، جبکہ صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے سالڈ ویسٹ کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں۔ پاک بزنس ٹرین کے آغاز سے جہاں مسافروں کو جدید اور معیاری سہولیات میسر آئیں گی، وہیں اس منصوبے سے پاکستان ریلوے کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ دنیا کو اس وقت کئی بحرانوں کا سامنا ہے، جبر اور یک طرفہ طور پر امن قائم نہیں کیا جا سکتا، مضبوط کثیر الجہتی تعاون کے ذریعے ہی تنازعات کا پرامن حل ممکن ہے۔ جنیوا میں عالمی اسپیکرز کانفرنس کے مرکزی سیشن سے خطاب میں اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ دنیا کو بین الاقوامی امن، اقتصادی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے خطرہ بننے والے ایک دوسرے سے جڑے کئی بحرانوں کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور بنیادی اصولوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، عالمی سطح پر نئے تنازعات سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ ہمیں فلسطین سے لے کر جموں کشمیر تک اعتماد بحال کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ اقوام متحدہ کو بھی پاپولرزم، قوم پرستی، یک طرفہ موقف جیسے چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کے نتیجے میں 100 سے زائد ترقی پذیر ممالک قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی تجارت اور مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے پارٹی کو ضمنی انتخابات لڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لیں۔ امیدوار پارٹی ٹکٹ کے حصول کے لیے درخواستیں مرکزی سیکریٹریٹ 180H میں جمع کروا سکتے ہیں۔ چین کی ٹیلی کمیونیکیشن کی صف اول کمپنی گوانگڈونگ گروپ نے پاکستان میں ٹیلی کام، EV چارجنگ اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ شنگھائی میں وفاقی وزیر IT شیزا فاطمہ خواجہ سے ملاقات میں گوانگڈونگ گروپ کے وفد نے اسلام آباد کا دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی۔ سرمایہ کاری کو ممکن بنانے میں SIFC کا اہم کردار ہے، جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر رہا ہے۔ برازیل پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہمارے نمائندے ضمیر عباس ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا تفصیلات ہیں۔ ضمیر بتائیے گا کیا اقدامات ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط ہو رہا ہے مارکیٹ پر؟ جی، حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جہاں معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، وہیں مہنگائی کی شرح میں بھی نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ جب بھی مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بزنس کمیونٹی کو اس کا انتظار ہوتا ہے کہ آنے والی جو زرعی پالیسی ہوگی اس میں اسٹیٹ بینک کیا ریٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ جتنا ریٹ کم ہوگا اتنا ہی بزنس مین کو فائدہ ہوگا اور جو بزنس ہے وہ فلرش کرے گا۔ آج اسٹیٹ بینک میں زرعی پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 4 بجے، جس کے بعد اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد پریس کانفرنس کے ذریعے اگلے 2 ماہ کے لیے ملک میں انٹرسٹ ریٹ کا جو ہے وہ بتائیں گے۔ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹ یا پھر 100 بیسس پوائنٹس کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو کرنٹ مانیٹری پالیسی چل رہی ہے وہ تقریباً 11% پہ ہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ 10 یا پھر 10.5 تک اسے لے جایا جائے گا، کیونکہ اتنا کوشن اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو عالمی سطح پہ بھی پاکستان کی معاشی پالیسیز کو سراہا جا رہا ہے۔ دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی معاشی پالیسی اور سفارتی پالیسی کو کافی خوشائن قرار دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی ترقی ممکن ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کا ایک نیا تشخص بھی اجاگر ہو رہا ہے۔ IMF نے پاکستان کی رواں مالی سال کے لیے جو GDP گروتھ ہے وہ 3.6 پریڈکٹ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کویت اور UAE کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈز اور کوپریشن بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہا ہے، جو کہ کافی خوشائند ہے۔ یہ تمام وہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی معیشت کے لیے مزید خوشخبریاں ہوں گی۔ جی شکریہ ضمیر عباس۔ ناظرین، ہر محاذ پر ناکامی، ہر فورم پر خاموشی، مودی سرکار کا جھوٹا دیش بھکتی بیانیہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ مودی سرکار کی جنگی اور سفارتی ناکامی اور پارلیمنٹ میں حقیقت چھپانے کی ناکام کوششوں نے عوامی اعتماد کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ تفصیل بتائیں گی نورین آصف۔ آپریشن سندور ہو یا مہادیو، ہر محاذ پر مودی سرکار کی ناکامی بے نقاب ہو چکی ہے۔ پارلیمانی اجلاس بھی حقیقت چھپانے میں ناکام رہے۔ پارلیمنٹ میں اپنے ہلاک ہونے والوں کو فراموش کر کے مودی سرکار نے نام نہاد دیش بھکتی کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ شبھم دویدی کی اہلیہ اشنیا دویدی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے پارلیمنٹ میں طویل تقریر کی مگر پہلگام اٹیک میں 26 ہلاک ہونے والوں کا ذکر تک نہ کیا۔ مجھے ایک بہت بڑا دکھ ہے میرا کہ انہوں نے ان 26 لوگوں کے لیے کچھ نہیں بولا، جہاں پرینکا گاندھی جی اور راہل گاندھی جی ان دونوں کو بھی میں تھینک یو بولوں گی کہ انہوں نے ان 26 لوگوں کی بات کری ہے۔ شبھم کا بھی نام لیا تھا انہوں نے
पार्लियामेंट में, बट मुझे इस चीज़ का दुख है। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे, बट ये नहीं बोला। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। ईशानिया द्विवेदी का शिकवा भारत की उन हजारों माओं, बेवाओं और बेटियों की आवाज है जिन्हें मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया। जां बहक के वर्षा ने मोदी सरकार की खामोशी पर सवाल उठाकर झूठे जंगी बयानी की असलियत सामने रख दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के सबूत पेश करने की बजाय मोदी सरकार मुसलसल खामोशी इख्तियार किए हुए है, जो खुद एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त के बाद मोदी सरकार ने अवामी एतमाद बहाल करने की बजाय खामोशी और सियासी बचाव का रास्ता इख्तियार किया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। भारत में हालिया ऑपरेशन महादेव को माहिरीन ने मोदी सरकार का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है, जिसका मकसद सियासी फायदा हासिल करना और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से तवज्जो हटाना बताया जा रहा है। वीऑन न्यूज के मुताबिक श्रीनगर के करीब कार्रवाई में 3 मुबैना दहशतगर्द मारे गए, जिनमें एक मकामी शख्स को सरगना करार दिया गया। फौज का दावा है कि भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ। माहिरीन ने तस्वीर में दिखाए गए हथियारों को गैरफाल करार देकर वाक़े पर शकूक व शुबहात का इज़हार किया है। माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्दों की शिनाख्त या किसी सबूत के बगैर उनका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ना मामूल बनता जा रहा है। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारत में सियासी दबाव या इंतखाबात के दौरान ऐसे मशकूक वाक़यात सामने आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आलमी सतह पर मोदी सरकार को एक और महाज पर हजीमत का सामना। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में नाकामी के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर ने भारतीय बयानियों को मुस्तरद कर दिया है, जबकि पाकिस्तान के मौसर मौक़िफ़ को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल हो रही है। लोकसभा में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वज़ीर आज़म मोदी खुद कह दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि ट्रंप मुतअद्दिद बार भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी में किरदार अदा करने का इंदिया दे चुके हैं। राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की हालिया तकरीर पर भी सवालात उठाए, जिन्होंने न्यू नॉर्मल की इस्तिलाह इस्तेमाल की और दहशतगर्दी की मजम्मत का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ये वजाहत देने में नाकाम रहे कि पुलवामा हमले के बाद किसी एक मुल्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की हकीकत पसंदाना और मुअस्सर पॉलिसी को सराहा जा रहा है। मोदी सरकार का झूठ अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन, मोदी हुकूमत ने 28 और 29 जुलाई को मुसलसल 2 रोज़ ओडिशा में पुरले मिसाइल के तजर्बात किए, जो तज्जियाकारों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से तवज्जो हटाने की सियासी कोशिश है। भारतीय जंगी जुनूनियत खित्ते को हथियारों की दौड़ और तबाही की जानिब धकेल रही है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत की हर अस्करी साजिश का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का नस्र मिसाइल है, जो तेज रफ्तार, मोबाइल और जोहरी सलाहियत का हामिल है। मोदी सरकार फौजी ताकत की नुमाइश को दाखिली नाकामियों पर पर्दा डालने का जरिया बना रही है, जो खित्ते के अमन के लिए एक संगीन खतरा है। भारतीय पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक मोदी सरकार की खामोशी पर अपोजिशन अरकान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। हुकूमती वज़रा की जानिब से ऑपरेशन की तफसीलात पेश न किए जाने पर ऐवान में सख्त सवालात उठाए गए। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने तंज करते हुए सवाल उठाया कि जिनकी पूजा लीमो और मिर्च से की गई, वो तैयारे आखिर कहाँ उड़े। उन्होंने मजीद कहा कि बस इतना बता दीजिए कि हमारे बेहतरीन तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में कितनी फ़ज़ा में बुलंद हुए। अरकान असम्बली ने मोदी सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि ऑपरेशन के दौरान होने वाले नुकसानात पर दानिस्ता पर्दा डाला जा रहा है ताकि नाकामियों को छुपाया जा सके। उनके बकौल गोदी मीडिया पर कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐवान में हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिफाई हिकमत अमली के तहत 6 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिस पर भारतीय हुकूमत ताहाल वजाहत पेश करने से कासिर है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय अपोजिशन के सवालात न सिर्फ ऑपरेशन की शफाफियत पर सवालिया निशान हैं, बल्कि बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का भी एतराफ़ हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन एक ख़तरनाक और मुनज़्ज़म आलमी जुर्म के खिलाफ शऊर बेदार करने और अवाम को आगाही फराहम करने का अहम मौका है। वज़ीर आज़म ने एक पैगाम में अफसोस का इज़हार किया कि पाकिस्तान में गुज़श्ता बरसों में गैर कानूनी हिजरत के बायस कई कीमती जानें ज़ाया हुई। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स कायम की है, जिसने FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर नुमायां कामयाबियां हासिल की। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग में मुलव्वस सरकारी एहलकारों को भी कानून के कटहरे में लाया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत आवाम को कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क रोजगार हासिल करने के बारे में आगाही फराहम कर रही है और अंदरून और बैरून मुल्क मुआशी मौक़े पैदा करने पर भरपूर काम जारी है। पाकिस्तान आलमी सतह पर भी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सरगर्म है।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि इंसानी स्मगलिंग दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज है जो लाखों अफराद को मुतासर करती है। गुर्बत, तनाज़ात, लाइल्मी और गैर महफूज हिजरत इंसानी स्मगलिंग के बुनियादी असबाब हैं। ख़वातीन, बच्चे और पसमानदा तबक़ात इंसानी स्मगलिंग के सबसे ज़्यादा मुतासरा गिरोह हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग गैर महफूज रास्तों से हिजरत कराते हैं जो हर साल सैकड़ों कीमती जानों के ज़िया का सबब बनते हैं। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन, अवामी आगाही और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। सदर ममलकत ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की मुतल्लक़ा एजेंसियाँ इंसानी स्मगलर्स के नेटवर्क्स को तोड़ने और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। नाज़रीन, पाक चाइना सेंटर में 2 रोज़ा हेल्थ एक्सपोर्ट समिट का इफ्तिताह वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर केयानी ने किया और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत सरदार यासिर इलियास ने किया। नुमाइश में शोबा सेहत से वाबस्ता फार्मास्यूटिकल कंपनियों, तिबी इदारों, नर्सिंग समेत तिबी माहिरीन समेत गैर मुल्की सफ़ीरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी ने नुमाइश में शोबा सेहत में इस्तेमाल होने वाली जदीद मशीनरी, आलात और प्रैक्टिशनर्स के लिए तिब्बी और तहकीकी मवाद पर मुश्तमिल स्टॉल्स का मुआयना किया और सेहत के जदीद मयार को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कंपनियों की काविशों को सराहा। नुमाइश का एहतमाम रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया, जो कल भी जारी रहेगी। इवेंट का मकसद पाकिस्तान के दवासाजी के शोबे की बरामदी सलाहियत का जायजा लेना और सनत को दरपेश अहम चैलेंजेस को उजागर करना था। मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर से सदर नेशनल बैंक रहमत अली हसनी ने मुलाकात की। मुलाकात में सनती कर्ज़ों और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। हारून अख्तर खान ने पायदार सनती तरक्की के लिए मालियाती सहूलत का फ़रोग़ नागज़ीर करार देते हुए सनतों को कर्ज़ों की फ़राहमी में नेशनल बैंक के अहम किरदार को सराहा। हारून अख्तर ने मुस्तहकम सनती ढांचे के लिए मालियाती इदारों की शराकत नागज़ीर करार देते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए बैंकों को कलीदी किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर नेशनल बैंक के सदर रहमत अली हसनी ने सनती तरक्की के लिए हुकूमत के विजन में मुकम्मल ताउन के अज़्म का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने वफ्द के हमरा कराची में मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने कहा कि मार्का हक जश्न आज़ादी में कारोबारी बरादरी की शमूलियत नहायत अहम है। आज हम जो कुछ भी हैं इस मुल्क की बदौलत हैं। यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाना हम सब की जिम्मेदारी है। FPCCI के वफ्द ने मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर की तैनाती पर मुसरत का इज़हार करते हुए खातून ड्राइवर रिंदा सालेह को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने मेट्रो ट्रेन ड्राइवर रिंदा सालेह के नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं, मुसावी मौक़े फराहम करते रहेंगे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि निदा सालेह जैसी बेटियां हम सबका फ़ख्र हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि 5 अगस्त का एहतजाज आगाज़ से कबल ही फ्लॉप शो हो गया है। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे, बच्चों की मां ने उन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। अपने बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि जब बानी PTI के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने भी नाम नहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तला दे दी है। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। अज़मा बुखारी ने कहा कि चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की बेज़ाब्तगियां चार्जशीट हैं। वेदर अपडेट पे खुशामदीद। नाज़रीन, हसन अब्दाल के इलाके झारिकस के करीब गाड़ी फिसलन के बायस बरसाती नाले में जा गिरी। गाड़ी में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद सवार थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब वाकंड से ताल्लुक़ रखने वाला एक ही ख़ानदान के 10 अफराद हसन अब्दाल के नवाही गाँव भलट जोगी से वाकंड वापस जा रहे थे कि रास्ते में झारिकस के करीब फिसलन के बायस गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। रेस्क्यू 1122 और पुलिस को इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन की निगरानी में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं। रेस्क्यू एहलकारों के साथ गोताखोर टीमें भी जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है जबकि 5 अफराद ताहाल लापता हैं।
मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश हुई और बादल खूब जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। म्यूनसिपल अमला नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकालने में मसरूफ है। दरियाए जहलम और दरियाए चनाब में तूगियानी का खदशा है। आज दरियाए जहलम में रसूल बैराज के मकाम पर पानी की आमद 4900 जबकि अखराज 4285 क्यूसिक है। दरिया चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 54,227 और अखराज 39,227 क्यूसिक है। महकमे मौसमियात ने दोनों दरियाओं में तूगियानी का अलर्ट जारी किया है। नाज़रीन, जुड़वां शहरों में बारिश की सूरत हाल के बारे में जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ हसन तारिक बट से। जी हसन। जी, जुड़वा शहरों में कल रात से जारी जो बारिश का ये ताज़ा सिलसिला है, इसमें अब तक तकरीबन 45 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 87 मिलीमीटर इस्लामाबाद में सैदपुर के मुकाम पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दूसरे नंबर पे रावलपिंडी में शमशाबाद के मुकाम पर तकरीबन 81 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई बारिश पड़ी है। इसके अलावा रावलपिंडी में ग्वालमंडी के मुकाम पर तकरीबन 30 मिलीमीटर, चटाला के मुकाम पर 27 मिलीमीटर, इस्लामाबाद में PMD बोकरा ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 50 to 55 मिलीमीटर जो है वो बारिश पड़ी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा जो है वो 31 जुलाई तक जो है वो ये बारिश का सिलसिला जारी रहने के इम्कानात हैं। नालालाई की बात की जाए तो ग्वालमंडी के मुकाम पर तकरीबन 5 फुट जो है वो पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कटारियाँ के मुकाम पर तकरीबन 6 फुट जो है वो पानी की सतह रिकॉर्ड की जा रही है। जो वासा है, रावलपिंडी इंतज़ामिया है, उन्होंने रावलपिंडी शहर के नशेबी इलाकों के अंदर अमला और मशीनरी को जो है वो डिप्यूट किया है ताकि बर वक्त जो है वो निकासी आपको यकीनी बनाया जा सके और किसी भी किस्म की जो हंगामी सूरत हाल है उससे फौरी निपटा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे से ही मतला अब्र आलूद है और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटे में बारिश मुतवक्की है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए नुमाइंदा PTV न्यूज़ नवीद हयात हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर का मतला जो है वो सुबह सवेरे से ही अबर आलूद है और उफ़क़ पर बादलों का राज है। आज महकमा मौसमियात ने शहर भर में वक्फे से बारिश की नवीद सुना रखी है और इस वक्त भी लाहौर के चंद मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त तक 87% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर शदीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है और जिससे लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में जो है अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज शहर भर में जो है वक्फे से चंद मकामात पर कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश के इम्कान है। PDM ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों के नुकसानात से बारिशों की वजह से जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहाल इस वक्त जो है मानसून बारिशों की वजह से दरियाओं, नदी नालों में जो है पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरियाए सिंध में चश्मा और काला बाग के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जबकि दरियाए रावी, चनाब और जेहलम में जो है इस वक्त पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। वज़ीर आला पंजाब ने जो है मुतलका इदारों को जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत की है और फील्ड में रहने की हिदायत की है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से जो है बर वक्त निपटा जा सके। जी ठीक है, नवीद हयात तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मानसून बारिशों के बाद शकरगढ़ में भी नदी नालों में पानी की सतह में नुमायां इजाफा देखने में आया है जिससे बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। शकरगढ़ में नदी नालों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शकरगढ़ से नुमाइंदा PTV न्यूज़ मोहम्मद रमज़ान बताइएगा। जी बिल्कुल, शकरगढ़ के मौसम की बात करें तो शकरगढ़ में भी रात गए से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर होने वाली हालिया बारिशों की वजह से शकरगढ़ के जो नदी नाले हैं वहाँ पर तूफ़ानी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो मैं इस वक्त शकरगढ़ नाला ओज के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 11,500 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इसके अलावा शकरगढ़ में नाला बई, नाला बसेंतर और दीगर नालों में पानी का बहाव अपने मामूल के मुताबिक है। रेस्क्यू 112 की टीमें किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए फील्ड में मुतहरक हैं। इसके अलावा यहाँ पर महकमा सेहत और दूसरे अदारे भी मुतहरक नज़र आ रहे हैं। रेस्क्यू 112 की टीमों ने अब तक 100 से ज़्यादा सैलाब से मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर यहाँ पर फ्लड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके अलावा रेस्क्यू 112 और ज़िली इंतज़ामिया ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। जी
जी शुक्रिया। और अब रुख करते हैं सिंध का। कराची डिवीजन, थरपारकर और जाम शुरू के अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ कहीं कहीं हल्की और बारिश का इम्कान है। हमारे नुमाइंदा अरीबा खिजर इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। अरीबा, मौसम के हवाले से आगाह कीजिएगा। शहर में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादलों का राज है, लेकिन आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज सुबह से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 75% है और जुनूब मगरिब से हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज मतलब ज़्यादातर अबरआलूद रहने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि सिंध के दूसरे अजला में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर ये है कि आज दिन भर कराची में ठंडी समुद्री हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों के बाइस गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे, सक्कर बैराज में निचले दर्जे का सैलाब, जबकि कोटरी बैराज में मामूल का बहाव है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब से मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। गिलगित में कराकोरम यूनिवर्सिटी से मुल्हिका हसन कॉलोनी में दरिया का पानी दाखिल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफसील गिलगित से हमारे नुमाइंदे शेर अब्बास की इस रिपोर्ट में। दनियोर मनोगा में क्लाउड बर्स्ट के बाद बड़ा सैलाबी रेला दरियाए हुंज़ में दाखिल होने से दरिया का रुख तब्दील हो गया और पानी कराकोरम बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी से मुल्हिका हसन कॉलोनी में दाखिल होने से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारों ने फौरी तौर पर लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया, जबकि देखते ही देखते लोगों के मकानात, जरी ज़मीनें और दरख्त दरिया की मौजूदगी नजर हो गए। जिस वक्त सैलाब आया था विदिन 10 मिनट मेरे ख्याल में जी यहाँ पर आर्मी के जवान यहाँ पहुँच चुके थे। 112 वाले भी आए हुए थे। उन लोगों ने हमारी बहुत बड़ी मदद की, सामान निकालने में बड़ी मदद की, लेकिन घरों को वो ना बचा सके। उस वक्त कोई ऐसी मशीनरी यहाँ नीचे मौजूद नहीं थी, तो सामान हमारा बच गया है। दरिया का रुख तब्दील होने और कटाव की वजह से लोगों की कीमती ज़मीनें अब भी मुसलसल दरियाबुर्द हो रही हैं। हसन कॉलोनी के मकीन दरियाई कटाव के सामने बेबसी की तस्वीर बने अपनी कीमती ज़मीनों से मुसलसल महरूम हो रहे हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारों ने इब्तदाई मरहले में मुतासरीन को खेमे और दीगर ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें फराहम कर दी हैं। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बारिश से मुतासरा शाहराह नारान जलखड रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी और NHA का अमला मशीनरी के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों और मकामी लोगों की मदद और रहनुमाई के लिए मौजूद है। गुज़िश्ता रात नारान और बेसर के दरमियान मुसलधार बारिश से जलखड और बेसर में तुगयानी से शाहराह ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बंद हो गई थी। सड़क को KDA और NHA ने मुश्तरका कोशिशों से भारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए बहाल कर दिया है। शाहराह कराकोरम समेत शुमारी इलाका जात में ट्रैफिक मुकम्मल बहाल हो गई है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान को उनके अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात अली शेर महसूद का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए सयाह बिला खौफ सफ़र कर सकते हैं। कागान नारान की वादी में पहले ही ट्रैफिक बहाल कर दी गई थी। अब चिल्लास, मानसेरा, बाबू सट्टाप और खंजराब से रायकोट तक के इलाके भी क्लियर कर दिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि NHA और मुतल्लिका इदारे दिन रात सरगर्म अमल है। शाहराहों को महफूज बनाने के लिए NHA अपना काम जारी रखेगी। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। सहूनी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 83 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चों के अलावा 33 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। हमलों में मुताद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए, जबकि गजा में लोग बड़े पैमाने पर फाका कशी का शिकार हैं और ये सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में बेशतर अस्पताल अब मलबे का ढेर बन चुके हैं और तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे बीजिंग में मुसलसल तेज़ बारिशों के बाद आने वाले सैलाब, लैंड स्लाइडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान के बाद हंगामी रेस्क्यू कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। शदीद बारिशों के बाद 30 अफराद हलाक हुए हैं। ये अमवात बीजिंग के पहाड़ी शिमाली अजला में हुई हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने फंसे हुए मकामी लोगों को निकाला। हुक्काम मकामी बाशिंदों तक अशिया ज़रूरिया पहुँचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। शदीद बारिशों के बाद शिमाली बीजिंग में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। हुक्काम ने इलाका मकीनों को दरिया के किनारों से दूर रहने की हिदायत की है।
वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने चीन में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल में मुब्तला चीनी भाइयों की तकलीफ का एहसास है। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से चीन के आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। और रूस के मशरक़ी बईद जजीरे के करीब 8.8 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला आया है। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कामचटका जजीरा नुमा था, जबकि 19 किलोमीटर गहराई रिकॉर्ड की गई। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोफ ने ज़लज़ले के बाद आवाम से पुरसुकून रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ज़लज़ले की वजह से अभी तक किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। हंगामी हालात के इलाक़ाई वज़ीर ने तस्दीक की कि कामचटका के कुछ साहिली हिस्सों में सुनामी से 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें पैदा हुई हैं। उन्होंने लोगों को जजीरा नुमा के साहिल से दूर रहने का मशवरा दिया है। बहरुल काहिल भर में सुनामी की वार्निंग और एडवाइजरी जारी की गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें तमाम ममालिक ने 2 रियासती हल के फार्मूले पर इत्तफाक कर लिया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए कहा कि सऊदी फ्रांसीसी क़यादत में होने वाली इस आला सतह कॉन्फ्रेंस के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक बैनुल-अक़वामी उबूरी मिशन के क़याम पर इत्तफाक किया गया है, जिसका मकसद फ़लस्तीन में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की बहाली और गज़ा और ग़र्ब अदन में इसराइली आबादकारों का मुकाबला करना है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इस पर जोर दिया कि कई ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ख्वाहिशमंद हैं और यह हक़ फ़लस्तीनी अवाम का जायज़ और कानूनी हक़ है। उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल एक आलमी इत्तफ़ाक़ राय की अक्कासी करता है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों अरब अमन मंसूबा और ज़मीन के बदले अमन के हुसूल के मुताबिक इस हल का अमली नफाज ही मसले फ़लस्तीन के खात्मे की राह हमवार करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास के सदर फिलेमोन योंग ने इस इजलास को 2 रियासती हल की जानिब एक नाकाबिले वापसी मोड़ बनाने के लिए कार्रवाई का मुतालबा किया, जिसमें मज़ीद ताख़ीर या बहाने शामिल न हों। उन्होंने कहा कि यह तनाज़ा ना तो मुस्तकिल जंग के ज़रिए हल हो सकता है, ना ही लामुतनाही कब्ज़े या इल्हाक के ज़रिए। अमन और इस्तेहकाम तभी हासिल होगा जब इसराइली और फ़लस्तीनी अपनी अपनी खुद मुख्तार इस आज़ाद रियासतों में अमन, सलामती और वक़ार के साथ साथ रह सकेंगे। और फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसराइल ने गज़ा में इंसानी अलमिया के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम न किए तो रवां साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया जाएगा। कीर स्टारमर ने कहा कि इसराइली हुकूमत गज़ा की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इक़दाम करे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि पायदार अमन का वाहिद रास्ता फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल है। बरतानिया का फ़लस्तीन को तस्लीम करने की इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब गज़ा में इंसानी बहरान शदीद तर होता जा रहा है और आलमी बिरादरी इसराइल पर दबाव बढ़ा रही है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर नीदरलैंड्स का सख्त रद्दअमल, इसराइली सफ़ीर तलब 2 इंतहा पसंद वज़ीरों पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नीदरलैंड्स की हुकूमत गज़ा में इसराइली मुजालिम को नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले दिफा करार देते हुए शदीद रद्दअमल का इज़हार कर रही है। नीदरलैंड्स ने इसराइली सफ़ीर को तलब करने और 2 इंतहा पसंद इसराइली वज़रा पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का ऐलान भी किया। डच वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ख़जाने और कौमी सलामती के इंतहा पसंद इसराइली वज़रा पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद उकसाने और गज़ा में नस्लकुशी की हिमायत करने पर यह पाबंदी आयद की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ जंगबंदी पर आमादगी ना जाहिर की तो उसे नई पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। स्कॉटलैंड के दौरे से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन से लड़ाई खत्म करने के हवाले से रूस के पास 10 दिन की मोहलत है। लड़ाई के खात्मे के लिए 8 अगस्त तक मौसर इक़दाम न किए गए तो रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस पर 25% टैरिफ भी आयद किया जा रहा है, ताहम अमरीकी सदर के बयान पर रूस की जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। सदर ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत ने अगर तिजारती मुआहिदा न किया तो उसे भी 25% टैरिफ देना पड़ेगा। आलमी यूथ कॉन्फ्रेंस बराए अमन का बीजिंग में हो रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 3000 से ज्यादा नौजवान शिरकत कर रहे हैं। अमन के लिए एक साथ के उन्वान से कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अमन के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तब्दीली जैसे मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद की अपील की है। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम चाइनीज़ पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज़ और ऑल चाइना यूथ फेडरेशन ने मुश्तरका तौर पर किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा है कि दुनिया में अमन का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक के नौजवान इस फोरम को ख्यालात के तबादले, बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और दोस्ती बढ़ाने के मौके के तौर पर लेंगे।
रूस में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने यकातरिनस्बर्ग का दौरा किया और सोर्दलोफिसिक रीजन के डेप्यूटी गवर्नर से मुलाकात की। फ़रीक़ैन ने तिजारत, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में जारी ताउन को सराहा। डिप्टी गवर्नर ने सोर्दलोफिसिक रीजन की सनती और तालीमी सलाहियतों पर रोशनी डाली और पाकिस्तान में रूसी ज़बान की तालीम के मंसूबे को काबिल तहसीन करार दिया। रूसी हुकाम ने पाकिस्तान के साथ खेलों का सामान तैयार करने के मंसूबों की तजवीज़ पेश की। सफ़ीर ने रूस के आलमी अमन इस्तेहकाम में किरदार को सराहा और यकातेरिनस्बर्ग को पाकिस्तान के सनती शहर सियालकोट के साथ सिस्टर सिटी करार देने की तजवीज़ भी दी। मार्का हक की फतह पर बरतानिया के शहर कार्डिफ में पाकिस्तानी वर्ल्ड कम्युनिटी और यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम तकरीब का इन्नकाद किया गया। इस तकरीब का मकसद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम के साथ यकजहती का इज़हार और मार्का हक की फतह का जश्न मनाना था। तकरीब के मेहमान खुसूसी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि पूरी कौम ने हर महाज पर जद्दोजहद की और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में कामयाबी समेटी। मैदान जंग में अफवाज बैनुल-अक़वामी सतह पर सिफारती महाज पर हमारे सिफारतकार और दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देकर दुनिया को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है। उन्होंने बताया कि PIA 16 अगस्त से मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें बहाल करेगी और दीगर बरतानवी शहरों तक ऑपरेशंस में तोसी की जाएगी। मक्का मुकरमा में तारीखी गारे सौर तक ज़ायरीन की रसाई के लिए मोनो रेल मंसूबे का आगाज कर दिया गया है, जिससे 2 घंटे पैदल सफर का फासला 3 मिनट तक सिमट जाएगा। हिजरत मदीना मुनव्वरा के हवाले से तारीखी अहमियत के हामिल गारे सोर तक ज़ायरीन की रसाई के लिए तैयार मोनो रेल मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मंसूबे की आजमाइशी शुरुआत नवंबर में हो जाएगी, जिसके तहत हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात को नुमाया करते हुए ममलुकत आने वाले ज़ायरीन को वहां जाने की सहूलत मुयसर आएगी और वो तमाम मकामात की ज़ियारत मुख्तसर वक्त में कर सकेंगे। लकी मरवत पुलिस ने गंडी चौक के मकाम पर 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली हैं। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने खुफिया इतला पर गंडीपुर के मकाम पर गाड़ी के इंतजार में खड़ी 2 मशकूक खवातीन से तलाशी ली। दोनों खवातीन से मजमूई तौर पर 7 किलो से जायद की चरस बरामद कर ली गई, जिनकी मालियत लाखों है। पुलिस सराय के मुताबिक खवातीन स्मगलर्स का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। नाज़रीन, खेल में आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान क्रिकेट सीरीज का आगाज कल पहले T20 मैच से होगा। सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ने दूसरे रोज भी लॉडर हिल के ब्रॉवर्ड काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन किया। कोचेस ने कंडीशन के हिसाब से नेट प्रैक्टिस में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। बैटर्स ने पावर हिटिंग पर फोकस किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन 3 T20 और 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। T20 मैचेस 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को लॉडर हिल अमेरिका में खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को तरुबा में शेड्यूल हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान चैंपियंस ने मुसलसल 4 कामयाबियों के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेस्टर में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की टीम पहले बैटिंग करते हुए 74 रन बनाकर आउट हो गई। बेन डंग 26 और कैलम फर्गूसन 10 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। बाकी तमाम बल्लेबाज सिंगल फिगर तक ही महदूद रहे, जबकि पाकिस्तान चैंपियंस की जानिब से सईद अजमल ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान चैंपियंस ने 75 रन का हदफ बगैर कोई विकेट गंवाए हासिल किया। शर्जील अहमद 32 और सुहेब मकसूद 28 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। सईद अजमल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान चैंपियंस अपने तमाम मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। सऊदी अरब में पाकिस्तान क्रिकेट लीग अल खबर चैप्टर के मैचेस खेले गए, जिसमें 8 टीमों ने सनसनीखेज खेल पेश किया, जबकि लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियादाद भी मैचेस देखने के लिए पहुंचे, जिन्होंने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई भी की। सऊदी अरब के शहर अल खबर में पाकिस्तान सुपर लीग के इंडोर क्रिकेट मुकाबलों को देखने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि साबिक कप्तान और लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और क्रिकेट मुकाबलों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर 8 मुख्तलिफ टीमों के दरमियान मैचेस खेले गए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी बॉलिंग और बैटिंग से शायकीन को खूब महसूस किया। पाकिस्तान क्रिकेट लीग के ऑर्गेनाइजर
احسن نصیر، یایا اشفاق اور پاک بان کے چیئرمین عمران صدیقی سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ کرکٹ پاکستانیوں کا پسندیدہ کھیل ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا آغاز کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر انڈور کرکٹ کا اہتمام کیا گیا ہے وچ از ویری گڈ، بہت زبردست لگ رہا ہے ہمارے کو۔ شائقین کی بھرپور تعداد ہے یہاں پر جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ بہت اچھا لگا مجھے اور سب بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور میچ بھی جو ہے وہ ون آف اے کائنڈ ہے جو پاک بان نے ارینج کیا ہے۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ میرا ماننے میں یہ آتا ہے کہ ہمیں ایک کیپ بال ایسوسی ایشن پاک بان کی بنانی چاہیے اور اس کو لے کر پوری سٹیز کے اندر چلنا چاہیے اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہیے۔ یہاں پر بھی 8 ٹیمیں کھیل رہی ہیں یہاں کی خبر کی، اور بہت ہی لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس فارمیٹ کو۔ یہ نیا فارمیٹ ہم لے کے آئے ہیں تو لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ انڈور کرکٹ ہے۔ ضلع بنو میں آل پاکستان ضیاء اللہ سپر سٹار ٹیپ بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 30 سے زائد ٹیموں نے شرکت کی۔ فائنل میچ پختون ٹائیگرز اور رائزنگ سٹارز کے درمیان کھیلا گیا۔ رائزنگ سٹارز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 98 رنز بنائے۔ جواب میں پختون ٹائیگرز نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 8 اوورز میں ہدف حاصل کیا۔ تماشائیوں کی بڑی تعداد نے سنسنی خیز مقابلے سے بھرپور لطف اٹھایا اور ہر چوکے کے چھکے پر پورا دل کھول کر داد دی۔ اختتامی تقریب میں کامیاب ٹیموں کو ٹرافیوں اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ورلڈ جونیئر اسکواش ٹیم چیمپئن شپ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پری کوارٹر فائنل میں پاکستان نے پولینڈ کو 2-0 سے مات دی۔ عبداللہ نواز اور انس علی شاہ نے اپنے میچز جیت کر پاکستان کو فیصلہ کن برتری دلائی۔ عبداللہ نواز نے یون سمبورسکی کو 12-10، 4-11، 11-8 اور 11-2 سے مات دی۔ انس علی شاہ نے پولش حریف فرانچسک میکیونچ کو 11-7، 9-11، 10-12، 11-5 اور 11-3 سے ہرایا۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہے۔ سائیکلنگ کی بات کرتے ہیں تو نیدرلینڈز کی لورینا ویبس کی ٹور دی فرانس خواتین سائیکل ریس میں لگاتار دوسری کامیابی، چوتھا مرحلہ بھی اپنے نام کر لیا۔ ڈچ سائیکلسٹ ماریانے ووس مجموعی برتری برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ 9 مراحل پر مشتمل ریس کا چوتھا مرحلہ سومر سے پورٹیر تک 130.7 کلومیٹر کے ہموار راستے پر مشتمل تھا۔ ڈچ سائیکل سوار لورینا ویبس نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 54 منٹ اور 11 سیکنڈ میں طے کیا۔ ریس لیڈر نیدرلینڈز کی ماریانے ووس معمولی فرق سے دوسرے نمبر پر رہیں۔ آئرلینڈ کی لارا گیلسپی نے پوڈیم مکمل کیا۔ ناظرین، کھیل کی خبریں آپ جان چکے ہیں، رخ کرتے ہیں مین ڈیسک کا۔ شکریہ سمیع۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو، ہمیں دیجیے اجازت۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ۔